machines are those system या फिर क्या बोलते हैं, मशीन ऐसा है जो हमारा effort which is used so that we can reduce our effort to do some work, right? For example, just I said if I go to DMart, if I pick each प्रोडक्ट और उसको हाथ में लेके घूमने से बेटर रहेगा if I take a ट्रॉली में कंज्यूम भी हो जाएगा if I keep trolley so it will be easy to push that, right? So trolley in that case can be acting as a machine. Okay, now next we also have scissor. We have scissor से क्या यूज करते हैं, क्या करने के लिए यूज करते हैं? काटने के लिए. So it gives a nice precise cut using a scissor. So basically we have different type of machine like scissor. We have ठीक है? lemon squeezer. Now we have this. Bottle opener. ये सब काम दर्श कर सकता है. This is wheeler. And even this system is a simple machine where we have a pulley with a rope. इसको use करके हम bucket easily pull कर सकते हैं, right? So this all are example of simple machine that we use. ठीक है? So this is used for what? To reduce our effort, to reduce our work. So function and uses of simple machines क्या क्या है? First, in lifting a heavy load by applying less effort. Effort means less force. What force I am applying, that force is called effort. And किसके ऊपर लगा रही है? जैसे if I am pulling a bucket, then bucket is acting my load. So in lifting a heavy load by applying the less effort, that is act as a force multiplier. Less effort में ज़्यादा लोड उठा कर पा रही हूँ means what? मेरा force multiply हो रहा है. ठीक है? Next is इसका example है. ये देखा है कभी? जैक यूज करके what they use? जैक करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए. मेरे हाथ से मैं अगर करने को जाऊँ, it is not that easy. उठा ही नहीं पाओगे. करेगा ना. हाँ देखा ना, वो दूसरा एग्जांपल देते हैं, इसलिए मैंने बोला I can't. So we can easily lift it using a jack. Next we have second we have in changing the point of application of effort to a convenient point. ये मैंने फर्स्ट के चैप्टर में किया था. Changing the point of application. जैसे साइकिल का हमको ये व्हील घुमाने के लिए we are applying parallel यहाँ पे, because it is having more radius. So it is we are applying the force at a convenient point to do the bumper. ठीक है? Second we have वो ये जेल में होता है ना, जेल स्टोन ग्राइंडर में भी क्या होता है, यहाँ पे भी है the handle at the extreme rim so that I can easily less force से हम easily इसको rotate कर सकते हैं. So that is applying the effort on a convenient point. ये second point में मैं पूछूं क्या? सारे point पूरा होने के बाद मैं पूछूंगी what are the points. First point क्या था? As a force multiplier, मतलब less effort, more force on the load. ठीक है? In changing the point of application is my second. Third is in changing the direction of effort to a convenient direction. Okay. Now suppose I have a well, बड़ा well, और मेरे पास bucket with a rope है. Only bucket with a rope. अब तक पुली मैंने apply नहीं किया. तो हम कैसे कोई गाँव में करते हैं? They put that bucket inside with a rope and फिर वो ऐसे से pull करते हैं. Right? Now ऐसे पुल करने में प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्शन ऑफ माय ग्रेविटी इज डाउनवर्ड एंड आई एम वर्किंग टोटली अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. सो वो एफर्ट ज़्यादा लगता है. वेयर एज अगर इफ आई अप्लाई अ पुली तो फिर क्या हो जाएगा, माय डायरेक्शन ऑफ फोर्स एप्लीकेशन विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो ये मेरे वेट का भी उस पर आ जाता है. तो it is easy to pull like this way rather than pulling like this way. So that means changing the direction of
effort to a convenient direction. तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट. सारे पॉइंट याद रखना क्योंकि जब मैं सिंपल मशीन का डेफिनेशन बोलूंगी उसमें सारे पॉइंट कंबाइन हो गया. नेक्स्ट इज फॉर ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड. फॉर एग्जांपल फोर्स मल्टीप्लाई इज फोर्स को मल्टीप्लाई कर या फिर स्पीड इंक्रीज करें. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल यो अगर ब्लंट होता तो फिर कट करने को ज्यादा टाइम लगता था. हाथ से भी करने के लिए इतना प्रिसीजन नहीं मिलेगा. सो दिस इज एन एग्जांपल वेयर आई कैन स्पीड अप माय टास्क बाय अप्लाइंग लेस फोर्स. इसके जगह पे वी कैन आल्सो कंसीडर द सीजर. सीजर भी स्पीड अप कर कम फोर्स अप्लाई करने में फास्ट कट कर सकते. So that is also obtaining speed gain in speed. चार पॉइंट हो गए. क्या क्या 4 पॉइंट है? फोर्स मल्टीप्लायर, Speed multiplier. Force multiplier, Changing the point of force at a convenient point. changing the point of application of effort. Changing the direction of force applied to changing the convenient. direction. तो 4 पॉइंट हो गया. So a machine is machine का definition. A machine is a device by which we can either overcome a large resistive force, that means जो हमारा load है, at some point by applying a small force. तो वहाँ पे आ गया force multiplier वाला. At a convenient point, second point भी आ गया. And in a desired direction, third point आ गया. Or by which we can obtain a gain in speed, fourth point आ गया. तो ये चारों पॉइंट मिला के मेरा व्हाट इज अ मशीन का आंसर ये चारों पॉइंट में आ जाता है. समझ में? रिमेंबर 4 पॉइंट्स, यू विल बी एबल टू राइट द डेफिनेशन व्हाट इज मशीन. क्लियर? नाउ मूविंग टू टेक्निकल टर्म्स. किसी को अभी भी डाउट है इसमें? हाँ या ना तो एटलीस्ट बोल. बाकी तुम बोलता है नहीं. कभी कभी ऐसा लगता है सोया हुआ है. अ मशीन, टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू अ मशीन. तो फर्स्ट है एक मशीन है, एग्जांपल ऑफ मशीन. जो पॉइंट में ये एक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड फुलक्रम. जिस लोड को मेरे को उठाना है दैट इज कॉल्ड लोड. एंड यहाँ पे मैं अपना फोर्स अप्लाई कर रही हूँ दैट इज माय इनपुट. फुट इज कॉल्ड एफर्ट. हमेशा जो उठाना है जिस पे काम करना है दैट इज लोड और जो मैं इनपुट डालती हूँ दैट इज एफर्ट. लोड और एफर्ट बोथ आर फोर्सेस. ठीक है. एंड दिस fulcrum is a fixed point जो इनके पीछे या फिर कहीं और पोजीशन में रहेगा. वो जैसे मैं बताऊंगी आगे समझ में आ जाएगा. Now load, the resistive or opposing force to be overcome by a machine is called load. इस चैप्टर के सारे डेफिनेशंस आपको याद करने हैं. So load is what? The resistive or opposing force to be overcome by a machine. एक मशीन से मुझे कौन सा फोर्स को ओवरकम करना है दैट इज कॉल्ड लोड. ठीक है. सेकंड इज एफर्ट. एफर्ट some people say effort. Effort. कोई तो बोलता है. ठीक है. So effort will be what? The force what I apply. The force applied on the machine to overcome the load is called the effort. जो हम apply कर रहे हैं, which is the input on the machine. ठीक है. तो आउटपुट लोड पे होता है, इनपुट एफर्ट में होता है. नेक्स्ट इज मैकेनिकल एडवांटेज. मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज. मतलब अगर मेरे को इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट. दोनों भी फोर्स है. तो व्हाट विल बी द यूनिट? मैकेनिकल एडवांटेज का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन. कुछ नहीं क्योंकि दोनों की रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी है ना. इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी. सो देयर विल बी नो यूनिट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज. तेरा काम है. बैग में रख. अरे आप उन लोग का तेरे बैग में रख. फेंकने जा रहे हैं वो. बैग में रख. किसी का कचरे का डब्बा नहीं है और इधर वो कचरा वाला किधर भाग गया पता नहीं. वो कचरा नहीं है. बैग में रख. बैग में रखो और घर पे जाके फेंको. मेरे बैग के दोनों साइड के बॉटल वाले में हम लोग करके लेके जाते हैं. क्या सबका कचरा है आपका? अपना खुद का बैग में खुद का कचरा तो रख ही सकते
आने दो। अरे क्या लगता है कौन सी बात? ठीक है, next. So this is your formula. Mechanical advantage equals to load upon effort. ध्यान दो, I will be asking each the formula after एक बार पूरा मेरा बोलने के बाद, ठीक है? Okay. किधर जा रहा है? अनीच गया। क्यों मतलब? बैठ उधर। मैम आँख में लग जाएगा ना तो प्रॉब्लम। किधर? आँख में डाल दूंगा ना। पानी नहीं है, किधर हाथ धोने वाला है? थोड़ा पानी है। किधर? नहीं, थोड़ा भी बाल्टी नहीं में भर है। के रखा है। नहीं है बाल्टी में। अनीश क्यों गया मेरा? नहीं है पानी। आगे आगे हो गया? अब तो बिना हाथ धोए आ गया क्या? बाल्टी लेके जाओ। वो हाथ धोने नहीं जाएगा। सैनिटाइजर रखो अपने हाथ में। वही मैं बोल रहा हूँ भाई, ये बिना हाथ धोए आ गया। नहीं किया कौन? अरे वो सैनिटाइजर से हाथ ये भी करके किसी का बॉटल उठा जली जीवन है। 8 बजे आएगा। कमिंग फ्रॉम राजस्थानी। अबे नहीं है पानी। ओके लिसन ओके नाउ इफ द मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, ये चीज याद रखो, ये बहुत बार पूछते हैं और बहुत आगे भी लगने वाला है पूरे चैप्टर में. इफ द मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 मींस व्हाट, लोड ज्यादा है और एफर्ट कम है, तो इन दैट केस द मशीन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर. ठीक है, मतलब ज्यादा लोड को मैं कम एफर्ट में उठा पा रही हूँ, सो इन दैट केस इट एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर. रोजगारी जीवन है. इधर टॉयलेट से हाथ से अरे वहाँ से तुमने डाला क्या उसमें से? किसमें से? अबे भरा हुआ है पूरा. इधर. अबे अंदर वो बिस्लेरी का अबे उसमें मैं डाला पागल क्या? है इतनी मैं तो बोल रहा हूँ. कहाँ से लिया फिर? टॉयलेट के बाद अबे चाट रहा था अपना. Okay, now बच्चे second, को दिखा नहीं पानी. the mechanical advantage is less than 1. If it is less than 1 means what? My load is less as compared to effort, right? If mechanical advantage is less than 1, that means load is less as compared to effort. मतलब क्या हो जाएगा? It will be acting as a gain in speed. मतलब जो हम कटिंग कर रहे थे या सीजन कर रहे थे उसमें हम ज्यादा एफर्ट लगा रहे थे लेकिन काम कम इसमें हो रहा था बट स्पीड बढ़ रहा था. ठीक है, फोर्स कम में हो रहा है लेकिन स्पीड बढ़ रहा है. थर्ड इज इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1. व्हाई? इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 मींस व्हाट? बैलेंस हो रहा. द मशीन इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन, जो हमारा वो बेल वाला कंडीशन है. इन दैट केस मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू कंडीशन वेल से जो उसमें डायरेक्शन चेंज कर रहे थे ना हम लोग, मतलब फुल्ली. there is no gain in force or speed in that case. अगर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1. समझ में आया? ये 3 बेसिस याद रखना. इसके बेसिस में और भी आगे पार्ट आ जाएंगे. समझ में आया? नेक्स्ट, वेलोसिटी रेशियो. हाँ, वेलोसिटी रेशियो. The ratio of velocity of effort to the velocity of load is called velocity ratio of the machine. हाँ, तो velocity ratio is equal to velocity of effort upon velocity of load. अगर दोनों भी सेम टाइम के लिए कर रहे हैं, effort और load दोनों सेम टाइम पे वर्क कर रहा है, for same time, so it will be velocity का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला velocity Displacement upon time. displacement of effort is dE and time taken is t, and if the displacement of load is dL and time taken same t है, so t get cancel off, it is d upon dl, that is d upon dl. Therefore velocity ratio is also equals to distance covered by effort and distance of load. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Next, if displacement of load is more than displacement of effort, मतलब ये ज्यादा है ये कम है, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1, एंड इन दैट केस अगर वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 है, वी विल हैव गेन इन स्पीड.
If the velocity of motion is velocity ratio is greater than 1, तो उस टाइम पे dE is greater than dl. In that case, machine will act as a force multiplier. कौन से कंडीशन में क्या ऐड करो वो आपको याद रखना है. If the velocity ratio of machine is equal to 1, तो क्या हो जाएगा? Change in direction. Change in direction. जहाँ पे भी velocity ratio 1 है या फिर mechanical advantage 1 है, in both of case it will be change in direction. Clear? Work input. Now, word itself says what is work input? Right? तो कितना मैं work कर रही हूँ? The work done on the machine by the effort is called work input. Work output क्या हो जाएगा? The amount of work done by the machine on the load. On the load. Right? So, the work done by the machine on load is called the work output. Now, efficiency. एक machine efficient है कब बोल सकते हैं हम? when the work and load are done. Effort is more than the load. Load is more than the effort. So, output work is more than the input work. So, हाँ. जब पानी आएगा बता 8 बजे आए. पानी के 10 minutes हो गए. 10 minutes to go. क्या काउंटडाउन लगा रहे हैं अभी? Quite. So efficiency of a machine is the ratio of work done on load, मतलब output work upon machine, the work done on machine by the effort, that is input work. So efficiency is work output upon work input. लेकिन हम लोग efficiency हम लोग percentage केस में लिखते हैं, इसके लिए multiply by 100%. ठीक है? ठीक है? Yes. Effort point. जिस पॉइंट में मैं एफर्ट लगा रही हूँ उस पॉइंट में एफर्ट पॉइंट है ना. The point at which the energy is supplied to a machine by applying the effort is called the effort point. And load point, जिस पॉइंट में लोड अपना फोर्स एक्ट कर रहा है, that is called load point. The point where the energy is obtained by overcoming the load is called the load point. ठीक है? अब यहाँ पे देखो, हम ऊपर करते हैं ऐसे पेंट का टिन और ये सब स्क्रू ड्राइवर सब दर्श को पता होगा. क्यों? क्योंकि वो स्लेव है. So here effort I am applying on what point? यहाँ पे इसके हैंडल में. So this is my effort point and यहाँ पे लोड है मेरा जो एक्ट हो रहा है. So this is my load. फलक्रम अभी तक नहीं है, फलक्रम में बाद में बताऊंगी. पूछिए भाई तुम्हें और एक ठीक है? Now principle of a machine. वो ऐसा क्या? Principle of a machine is for an ideal machine. Ideal machine. 100% efficiency. हाँ, ऐसा हो नहीं सकता कभी पहली बात. बट फिर भी अगर आइडियल मशीन के लिए जितना मैं इनपुट एनर्जी डाल रही हूँ, that much I'll get the output energy. So for an ideal machine, output energy is equals to input energy, right? Okay. अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? Energy is capacity to do work. It is equal to work done. So input energy is work done at the effort point, and output energy will be work done at the load point. Work obtained at the load point, right? So अब work का फॉर्मूला क्या है? Force into displacement. So work is effort. Effort is the force into displacement of the point of application of effort. Similarly, output energy के लिए work is equals to load multiplied by displacement of point of application of load. कुछ डाउट है यहाँ पे किसी को भी? समझदार? क्या क्या नहीं? क्या डाउट मैं पूछूं? क्या पूछ रही हूँ? क्या डाउट है क्या आपको पूछा? हाँ, लेकिन मैंने एक्सप्लेन क्या कर रही हूँ तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन. हाँ, हेडिंग देके बोल दिया. अरे नहीं देखा. Input energy is effort into displacement of लोड into displacement of load. ठीक है? तो इसको अगर मैं फॉर्मूला में लिखूं, so it will be what? This will be what? E into dE and this will be L into dL. ठीक है? So as per my principle of machine, E output energy, that is L into dL, is equals to E
as per principle of machine. यही है ना, effort को E लिख दिया, displacement D, load and dl. समझ में आया यहाँ पे? फिर से 4 पे ले लिया मैम। तू लिख रहा है? हाँ देख क्या लिख रहा है खाने की रेसिपी? क्या हुआ? देख मेरे पास proof है। आरब दर्द से खाने की ये मेरा पेन है उसका। देख मैं white हूँ वो black। समझ? बाबा इसका ही मैंने मालूम क्या है? हो गया? Yes. Get pen. Now what is difference between ideal machine and actual machine? अब मैंने बोला कि ideal machine और मैं जितना input energy I am putting that much I will get the output energy. लेकिन actual में कभी ऐसा नहीं होगा. Actual machine में output energy is always less than input energy. Because जो some energy जो कमी दिख रहा है less than जो बोल रही हूँ that will be lost in what? Friction, wear and tear या फिर वो moving parts जो रहते हैं वो सब के वजह से efficiency कम हो जाती है. So no machine is 100% efficient, right? Output energy will be always less than input energy. Ideal machine it says efficiency is 100%. Whereas actual machine efficiency is always less than 100%. अब कितना परसेंट वो डिपेंड करेगा उस मशीन पे. Its parts are weightless, elastic and perfectly smooth. For example, pulley they say कि ideal machine तब होगा जब उसमें friction ना हो. But pulley में और rope में तो friction आ गई, है ना दर्श?